cardiac innovations. It's very good question. Actually, we are now the part of Federation Association of Asia, that is called as FAPS. FAPS. So we are now the member of this FAPS. We are actually in talks with AMSEC, that is American Board of Perfusion Society, and we are even in talk with Australia Board of Perfusion Society. So what happens, in this field actually, in all cardiac field or medical field, whatever the new thing comes, it immediately actually comes to India. And because we people are very aggressive, not only perfusionists, our surgeons, our medical team is very, very aggressive. The other countries, they have lots of rules and regulation. If they want to change with a single needle, they can't change. They have to take permission from their authorities. Here it is not like that actually. So what we do, whatever is the good for the patient, we immediately convey that to the patient. And that's because of that, our Indian surgeons, our Indian perfusionists are more successful, more aggressive, and more daredevil. So we give our best to the patient. So what are the latest strategies to reduce blood transfusion during bypass? Well, nowadays, actually most of the operations they are doing on BT heart surgery, where we actually require very less blood. Even most of the surgeons doesn't require now a blood, whether they will do it or without pump or on pump. The blood usage now reduced tremendously. So we hardly give blood to the patient actually. In rare cases, if patient's hemoglobin before operation is less than 10, then only most of the time we give. Normally in most of the hospitals we have the protocol, even the hemoglobin is 8, we are avoiding giving them the blood transfusion, because we really don't know in future what will be the disadvantage of giving these bloods. Because if you remember, in Kuli's time, this Amitabh Bachchan got omitted and we gave him lot of blood actually, and because of that he has got this hepatitis C or something like that. So right now we have come up to hepatitis A, B, C, D, E. So in future there will be more diseases like that. Okay, right now, so that's why most of the centers we avoid giving blood. So there are certain machines also, their cells have got where we can take the blood from the patient's own blood, we circulate it. Yes. Again, if we are going to So we concentrate that blood so it and will give reduce it. the outside blood product to the patients. Cell saver technique is very much important for reducing the blood product, outside blood product to the patients. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो ब्लड होता है, पहले क्या होता था, ब्लड लॉस हो रहा है, तो ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम फेंक देते थे. लेकिन जो सेल सेवर है वो उसी ब्लड को जैसे प्यूरिफाई होते हैं ना, रिफाइन करना, तो हम क्या करते हैं उसी ब्लड को वापस जो है लेते हैं, उस मशीन में डालते हैं, उस मशीन को डाल करके उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसमें भी जो ब्लड के अच्छे सेल्स होते हैं उसको हम वापस से उसको, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऑटो ट्रांसफ्यूजन. इसमें क्या होता है कि हम कोई भी ब्लड यदि बाहर से किसी ब्लड को दूसरे पेशेंट में डालते हैं तो वो रिएक्ट करता है, क्योंकि ब्लड जो है वो प्रोटीन है, तो वो जाकर के बॉडी में रिएक्शन कर सकता है. बट ऑटो ट्रांसफ्यूजन कभी भी खुद का ब्लड खुद प्रॉब्लम नहीं करता है. और दूसरी बात मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा. FAPS जो सर ने अभी बताया उसमें 10 कंट्री इन्वॉल्व है, 10 कंट्री, एंड इट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर दैट आईसेक कि अगले साल वो जो है वो 10 कंट्री जो है वो हमारे भारत में आने वाले हैं. तो हमारा जो ग्लोबल एक्टिविटी है परफ्यूजनिस्ट का वो बहुत ही विशाल होने वाला है. इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी बाहर के लोग हमारे पास आते हैं या फिर हम लोग भी कभी बाहर जाते हैं तो हम लोग की जो नॉलेज शेयरिंग होती है टेक्नोलॉजी के साथ में, क्या हम कर सकते हैं. जैसा कि आपने पूछा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बारे में, उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कुछ नहीं है, वो मशीन लर्निंग और डाटा लर्निंग है. आपके कितने पेशेंट अभी तक हुए, उनका क्या आउटकम है, फिर हम लोग उसको मशीन में डालते हैं, वो मशीन उसको कैलकुलेट करता है और उसमें से बेस्ट आउटकम हमें देता है. कि आप यदि ये करते हैं तो एक पॉलिसी बनती है, एक ऐसा सिस्टम बनता है जिसमें मशीन हमें ये बताता है कि आपने 20,000 पेशेंट की सर्जरी की, 20,000 पेशेंट में आपने ये काम किए, इसमें आपके जो एडिक्वेसी जो गुड एडिक्वेसी रिजल्ट है वो आपके 5,000 पेशेंट में है. तो 5,000 पेशेंट को आपने जो फॉलो किया, आप यदि इसको कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका आउटकम बहुत, जो आपने एक्यूरेसी की बात की कि कितना होगा.
तो जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मशीन लर्निंग हमेशा डिपेंड करता है वो AI के ऊपर। ये लोग सर अभी बाहर की बात हो रही है, जैसे इंडिया ऑलरेडी सर मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी आगे रहा है, Yes. तो सर अगर कॉस्ट वाइज देखा जाए जो आपका सिर्फ जो ट्रीटमेंट फंक्शंस है तो कितना कॉस्टली और कितना चीपर है कंपेयर देन अदर्स? कंपेयर टू अदर्स इंडिया इज द चीपेस्ट एक्चुअली। मीन्स आप देखो तो हमारे इधर 5 to 6 लाख में पूरी बाईपास सर्जरी हो जाती है। यही कॉस्ट दुबई में देखा जाए तो दुबई में 1.5 लाख रुपये, सॉरी 15 कितना रुपये, नहीं क्या 50 to 60 लाख लैक्स लगता है, लैक्स yes, yes. 10 times. Yeah, 10 times. सो मोस्ट ऑफ द दुबई के पेशेंट भी हमारे यहाँ पे आते हैं भारत देश। इवन जो इंडियंस जो अमेरिका रहते हैं ना वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सिंपल है ना, जो डॉलर का भाव है रुपीज़ का भाव है वो हिसाब से इंडिया इज तो वेरी वेरी चीपेस्ट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे बिकॉज मोदी ड्राइव और प्रीवियस गवर्नमेंट ड्राइव जो राजीव गांधी में वगैरह सिर्फ 1.25 लाख में सर्जरी होती है। आज के तारीख में हरने अपेंडिक्स नहीं होता है, होता नहीं कार्डियक Means सर्जरी हम लोग कार्डियक सर्जरी के लिए 8 घंटा लगते हैं। ये कार्डियक सर्जरी एक बहुत बड़ा टीम रहता है, उसमें एक सर्जन रहता है, एक एनेस्थेटिस्ट रहता है, एनेस्थेटिस्ट पेशेंट को भूल देते हैं। परफ्यूजिस्ट का काम क्या रहता है? परफ्यूजिस्ट इज नथिंग बट संजीवन शास्त्र तज्ञ। सो हम लोग संजीवनी देते हैं, संजीवनी। ओके। सो हम लोग क्या करते हैं कि हार्ट को बंद करते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़ है, हार्ट को बंद करते हैं। सर्जन तो हार्ट को हैंडल करते हैं, हार्ट को रिपेयर करते हैं, हम लोग हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। यदि हमने हार्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो हार्ट पहले जैसा होएगा नहीं कि सर्जन ने कितना भी अच्छा रिपेयर कर लिया, ओके। तो हमारा काम उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। सो इन शॉर्ट एक कार्डियक सर्जरी में जितना इम्पोर्टेंस सर्जन का है, एनेस्थेटिस्ट का है, उतना ही परफ्यूजनिस्ट का रहता है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग बिहाइंड द कर्टन हो जाते हैं। सो आज फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना मीडिया आप We are really इसको proud. इतना सच में ये सर करो। एक्चुअली हम लोग भी प्राउड करते हैं सर कि अपना अच्छा, एक ब्लड का आपने पूछा था, तो ब्लड का सिर्फ कार्डियक सर्जरी में हम लोग जितना भी ब्लड इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी में जितना भी ब्लड है ना हम लोग वापस सक करते हैं उसको और फिर से पेशेंट को एक देते बूंद हम लोग बेकार नहीं हैं। होते। बाकी एनी Not a अदर single drop. सर्जरी जीरो ब्लड लॉस। Zero blood. पेट में वगैरह जो ब्लड है ना तो ब्लड तो वेस्ट जाता है, मीन्स वो सब करके बाहर फेंकना पड़ता है, वो रीयूज नहीं होता। एनी अदर सर्जरी, ऑर्थोपेडिक हो, कैंसर सर्जरी, किसी भी सर्जरी में, लेकिन हमारे सर्जरी में जो भी ब्लड है वो वापस देते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात रहता है कि जो वॉल सर्जरी रहती है, अब आपने ये सुना रहेगा कि हार्ट का जो साइज रहता है वो एक मुट्ठी भर रहता है, बट ऐसा नहीं रहता। वॉल सर्जरी में हार्ट का साइज इतना बड़ा रहता है और एक हार्ट 2 से 4 लीटर ब्लड एक्चुअली एक्यूमुलेट कर लेता है। तो हमारे पास जो ऑक्सीजन रहता है उसका जो कैपेसिटी रहता है वो 4 लीटर का रहता है, वो भी कभी कभी भर जाता है पूरा। सो जैसा रविंद्र ने बोला कि हम लोग सेल सेवर मशीन वापरते हैं, तो इसी ब्लड को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सेल सेवर मशीन क्या, दूध का दूध पानी का पानी। तो हम लोग वो जो पानी है, सॉरी जो पूरा ब्लड है उसमें से पानी निकाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ब्लड वापस पेशेंट को देते हैं। तो उससे एक फ़ायदा होता है कि पेशेंट को एक्स्ट्रा वॉल्यूम नहीं जाता है, मीन्स क्या रीलोडिंग नहीं होती है ऐसे। With Jira machine, that is one of the most important tasks. With that machine, they can go ahead with the cardiac surgery, any other surgery, so that they can avoid outside blood transfusion. Doctor, to summarize this, what are the key takeaways of this 2-day seminar? ISEC call. देखिए की टेक सेमिनार में हम लोग एक ही चीज़ रखते हैं कि पहले तो हम लोग नॉलेज शेयरिंग करते हैं पूरे भारतवर्ष से, नहीं केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व से जो है ना वो बहुत परफ्यूजनिस्ट यहाँ पर आकर के अपनी टेक्निक, अपने केस प्रेजेंटेशंस, अपने आर्टिकल्स जो भी हैं, तरह तरह के जो भी नई टेक्नोलॉजी उन लोगों ने वहाँ पे करते हैं, वो सारी चीज़ें आकर के यहाँ पे हम लोगों को शेयर करते हैं और हम लोग भी अपनी टेक्नोलॉजी को उनके साथ में शेयर करते हैं। उसके साथ में हम ये चाहते हैं कि हम लोग पेशेंट आउटकम कितना अच्छे से अच्छे हो, और प्लस हम जो अभी इस जो सेमिनार के अंदर में हम लोग जो काम करना चाहते हैं उसमें हम यही, मेरा जो टेक अवे मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ कि आप सभी मीडिया इन सब चीज़ों को निकाल करके ये दिखाइए कि परफ्यूजनिस्ट का रोल कार्डियक सर्जरी में कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हम जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं। जिस समय हमारे मशीन के ऊपर में वो पंप पे पेशेंट रहता है, उस समय पेशेंट की जीवन जो है और मौत वो हमारे हाथ में रहता है। तो हम सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा निकालना चाहते हैं, मगर हमारा जो एलाइड हेल्थ साइंसेज है
उसमें परफ्यूजनिस्ट के रिकॉग्निशन को लेकर के थोड़ी सी बातें आ रही हैं। तो हमारा आप सभी लोगों से एक निवेदन रहेगा, आप सभी मीडिया से, कि आप हमारे लिए जो है वो थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए और हमें जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी रेगुलेटरी करने के लिए भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। सो इस आईसेट कॉन के साथ में हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे देश की जो मीडिया हैं, जिनकी आवाज़ को लोग सुनते हैं, जिनकी आवाज़ को सरकार भी सुनती है, जिनकी आवाज़ को NCHP सुनता है, जिनकी आवाज़ को अलाइड हेल्थ साइंसेज के जो वहाँ पे ऑफिशियल बैठे हैं वो सुनते हैं, उन तक हम लोग की आवाज़ जाए और हम लोगों को जो है हमारे काम के बेसिस पे, हमारे जितने भी हम लोग ने अपने बिल को प्रोड्यूस किया है उसमें हम लोगों को जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी काउंसिल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरा एक बात बोलता कि आपने जो पूछा ना कि इसका टेक अवे मैसेज क्या है, तो हम लोग परफ्यूजन्स का फील्ड बहुत वास्ट फील्ड है, ये छोटा फील्ड नहीं है। इसमें सिर्फ बाईपास सर्जरी नहीं आती, तो हम लोग कंजेनाइटल मीन्स अभी बच्चा का जन्म हुआ है तो उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, तो एक दिन का बच्चे का भी सर्जरी परफ्यूजनिस्ट करता है। सो कंजेनाइटल रहता है, पीडियाट्रिक रहता है, एडल्ट रहता है, एडल्ट में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी रहती है। तो एक आदमी को सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, तो ऐसे सेमिनार से सब लोग सीखते हैं एक दूसरे से, और पेशेंट सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। दूसरी बात, जो अलाइड हेल्थ के लिए अभी जो बिल चालू है, अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री में लाखों सर्जरी होती है, लाखों सर्जरी होती है, लेकिन अभी तक परफ्यूजनिस्ट को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू अभी तक मिली ही नहीं है। कैसा है कि हर एक साइंस इवॉल्व होते रहता है। जैसा एनेस्थीसिया पहले इवॉल्व नहीं था, एनेस्थीसिया में पहले से डॉक्टर नहीं थे, ओके। हम लोग का जो पार्ट है ना वो सर्जरी से निगड़ित है, वी आर इन्वॉल्व इन सर्जरी, वी आर एक्चुअली डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। यदि पेशेंट का मॉर्बिलिटी होता है मॉर्टेलिटी मीन्स पेशेंट को यदि प्रॉब्लम होता है या पेशेंट की जान जाती है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, ओके। ये हमारी जो इम्पोर्टेंस है ये हमारे कार्डियक सर्जन को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, एनेस्थेटिस्ट को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। यहाँ से पहले एनेस्थेटिस्ट भी क्वालिफाइड नहीं थे, धीरे धीरे उनका साइंस इवॉल्व होके फिर वो डॉक्टर बने। इवन कार्डियक सर्जन भी पहले से डॉक्टर नहीं थे, वो कार्डियक थोरेसिक सर्जन थे, थोरेसिक सर्जन थे, ओके। बाद में एक कार्डियक सर्जन इन 1986 और समथिंग आ गए, एनीवे दैट इज़ अनदर इशू। बट इतना लाखों सर्जरी होने के बाद यदि उसके पीछे यदि परफ्यूजनिस्ट है तो हमें किसी ने आज तक आगे नहीं किया। और मैं चाहता हूँ कि आज आप इतनी संख्या से आए हुए हैं तो परफ्यूजनिस्ट का इम्पोर्टेंट आप इसमें अधोरेखित करो कि उससे सब लोगों को समझे, पंतप्रधान मोदी तक ये बात जाए कि ये लोग अदर टेक्नीशियन से अलग हैं। एक चीज मैं पॉइंट आप लोगों को बता देना चाहूँगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि टेक्नीशियन जो है तो वो किसी के कमांड में केवल उतना ही काम करते हैं जितना उनको ऑथराइज किया जाता है, मगर परफ्यूजनिस्ट जो होते हैं वो एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल केयर इमरजेंसी वहाँ पे वो सेल्फ डिसीजन उसी समय लेते हैं जो कि पेशेंट के जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस जो है वो हमारे परफ्यूजनिस्ट में या परफ्यूजन साइंस में और प्लस टेक्नीशियन में होते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, मगर किसी काम के बाद उस काम को करने वाले का जो महत्व होता है उस महत्व को न पाना भी हमारे लिए एक खराब बात होती है। क्योंकि आज यदि हम आईसेट की अथॉरिटी में हम बैठे हुए हैं तो हमारा ये काम होता है कि जो हमारे सदस्य हैं 1500 सदस्य, हम उनको कहीं भी मोरली जो है ना वो डिग्रेडेट ना करें, डाउन ना करें। तो ये हमारा रोल है। तो उसके तौर पे ही मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम अब ये जो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी जो बोल करके सब लोग टेक्नीशियन समझते हैं, देखिए एक पायलट भी टेक्नीशियन होता है क्योंकि वो ड्राइवर का काम करता है, लेकिन जो रिकॉग्निशन उसको मिलता है वो रिकॉग्निशन एक टैक्सी ड्राइवर को नहीं दे पाते हम लोग, है ना। तो हमारे कहने का मतलब क्या होता है कि इसी से आप समझ सकते हैं कि जो काम कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो रिकॉग्निशन हमें मिलना चाहिए हमारे काम में वो रिकॉग्निशन हमको आज तक नहीं मिला। हम उसी रिकॉग्निशन के लिए आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे साथ में स्टैंड कीजिए, हमारे साथ में खड़े हुए, और हमारा जो काम है आप हमारे कामों को यदि लोगों को बताएंगे लोग डेफिनेटली हमें रिकॉग्नाइज करेंगे।